स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हम एमसीक्यू टेस्ट है फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मीडियन लिथल डोज टू मीडियन इफेक्टिव डोज इज, व्हाट इज इट? थेरापेटिक इंडेक्स। Therapeutic index, correct. Okay, and what is the importance of therapeutic index? It is used to measure the safety of a drug. Yes, safety of drug, right? Okay, then next, the route of drug admission where the drug is placed under the tongue is Sublingual. sublingual route, below the tongue, that is sublingual. Okay, and what is buccal route? बकल रूट क्या है? टीथ और चिक के बीच में, ओके, टीथ एंड चिक के बीच में, दैट इज बकल रूट. ओके, नेक्स्ट, द पैसेज ऑफ अनचेंज फॉर्म ऑफ द ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज, क्या है ये? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, बायोअवेलेबिलिटी, क्या है इसमें से? Absorption. एब्जॉर्प्शन, करेक्ट, इट इज एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ व्हाट the drug does to the body is, what the drug does to the body is? Pharmacodynamics. Pharmacodynamics. Then next, the process of alteration of drugs within living organism so as to modify its activity or nature is excretion, metabolism, absorption, bioavailability. So what is this? Metabolism. Correct, it is metabolism. Okay, ठीक है. Then next, the phenomenon where interaction between two or more drugs produces an effect greater than the sum of their individual effects is Synergism. synergism. Correct. Okay, ठीक है. Then what is additive effect? क्या होता है? What is additive effect? Additive effect means when the combination of drug gives the same therapeutic effect, like A plus B is equal to 50. मतलब A अगर हमने 20 है और B 30 है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा. हाँ, मतलब ये टोटल इफेक्ट मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग का, दैट इज द एडिशन ऑफ द टू ड्रग्स. सो द फिनोमिनॉन वेयर इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग्स प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट इक्वल टू दी, यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, सो इट इज नॉट ग्रेटर, इट विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, तो वो हो जाएगा एडिटिव इफेक्ट. और यदि वो लेस होता है, लेस देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, तो एंटागोनिज्म है, दैट इज एंटागोनिज्म. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट, modification of response to one drug by another when they are administered simultaneously or in quick succession is referred to as, क्या कहेंगे इसको? Antagonism. नहीं, इट इज नॉट एंटागोनिज्म. क्या कहा है देखिए, मॉडिफिकेशन, ड्रग इंटरैक्शन. इट इज ड्रग इंटरैक्शन, राइट, क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स बोला है टू वन ड्रग बाय अनदर, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, सो दैट कैन बी ड्रग इंटरैक्शन. इट इज द ड्रग इंटरैक्शंस. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट, the agents which act on CNS, relieve anxiety or calm down the patients. So कौन से एजेंट है? यस, एंटीडिप्रेसेंट. नहीं, नो, नॉट एंटी डिप्रेसेंट. ठीक है, these are the sedatives. Okay, these are sedatives. So 9, the neurological disorder characterized by sudden periodic attacks of motor, sensory or psychological malfunction is, क्या है ये? इसका आंसर? Epilepsy. Correct, it is epilepsy. It is epilepsy. So the drug called Largectil is, कौन सा ड्रग है जो लार्जेक्टिल जिसे कहा जाता है? Which one? Yes, chlorpromazine. It is chlorpromazine. Okay, हम लोगों ने डिस्कस किया है chlorpromazine को. Then next, the local hormones with high biological activity and naturally found in the body either in active or inactive form are referred to as,
सो लोकल हार्मोन्स मतलब क्या? Autopoids. Autocoids, correct. These are the autocoids. Then next, in the treatment of Parkinson's disease, levodopa is given in combination with Carbidopa. carbidopa, correct. क्यों? Why? Why levodopa is given in combination? हाँ, yes, नेहा बताइए. It is a precursor of the dopamine. लेवोडोपा इज द प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन, बट लेवोडोपा को कॉम्बिनेशन कार्बिडोपा के साथ में क्यों दिया जाता है? क्या रीजन है? व्हाई लेवोडोपा इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा? यस, एनीबॉडी नोज? जो लिवोडोपा है वो इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है, उसके वजह से उसको इनहिबिट करने के लिए कार्बिडोपा दिया जाता है. राइट. जो लेवोडोपा है तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है. लेवोडोपा ये डोपामिन का प्रीकर्सर है. लेवोडोपा जब ब्रेन में एंटर करता है तो उसके बाद में वो डोपामिन में कन्वर्ट होता है. जब हम लेवोडोपा इंडिविजुअली देते हैं, सिंगल देते हैं, सिर्फ लेवोडोपा देते हैं, तो पेरिफेरली मतलब ब्रेन में जाने से पहले ही लेवोडोपा नियर अबाउट 80 to 90% डिग्रेड हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम. ठीक है. नाउ ये जो कार्बिडोपा ड्रग है, ये कार्बिडोपा क्या है? तो ये डोपा डीकार्बोक्सिलेज का इनहिबिटर है, इनहिबिटर ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम. जब हम लेवोडोपा और कार्बिडोपा को कॉम्बिनेशन में देंगे तब ये कार्बिडोपा जो एंजाइम है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, उसको इनहिबिट करेगा. डोपा डीकार्बोक्सिलेज का इनहिबिशन होने की वजह से लेवोडोपा उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और अगर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पहुंचेगा. मतलब अगर सिर्फ लेवोडोपा दिया जाता है तो वो 10 to 20% ब्रेन में पहुंचता है, बट लेवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो नियर अबाउट 70 to 80% लेवोडोपा ब्रेन में पहुंच जाएगा. मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है लेवोडोपा कार्बिडोपा का, ये कॉम्बिनेशन सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है. दिस इज द सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन. ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट. द ड्रग विच इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट विदाउट इंक्रीजिंग रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज, बताइए. कार्डियोटोनिक. कार्डियोटोनिक, करेक्ट. हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि डिकॉक्सिन या डिजिटालिस जो है कार्डियोटोनिक है, बट एड्रेनालिन इज नॉट कार्डियोटोनिक. राइट. एड्रेनालिन कार्डियोटोनिक नहीं है जबकि डिकॉक्सिन कार्डियोटोनिक है. ऐसा क्यों? तो डिकॉक्सिन जो है या डिजिटालिस वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है बट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को नहीं बढ़ाता है, जबकि एड्रेनालिन जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है. और जब रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाएगा. तो जो कार्डियोटोनिक ड्रग्स होते हैं वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स बढ़ाते हैं विदाउट इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ाए बगैर ही वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कार्डियोटोनिक. ओके. देन नेक्स्ट, द फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स व्हिच व्हेन एडमिनिस्टर्ड expel gas from the stomach or intestines are known as carminatives. correct. carminatives के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? umbelliferous fruits like fennel, caraway, asafoetida. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी को आना चाहिए. NSAID is act by इनहिबिट करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज. यस, साइक्लोऑक्सीनेज. साइली आपको भी आंसर देना नहीं है, जब तक मैं नहीं कहूँ आपको आंसर देना नहीं है. ठीक है. ओके सर. हाँ. सो NSAIDs act by inhibiting cyclooxygenase enzyme. सो क्या करता है साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो आर्किडोनिक एसिड के प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है. यस, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है. राइट. ओके. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व इन पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइंड द ऑड वन आउट. क्या ऑड है इसमें से? एट्रोपिन. एट्रोपिन. व्हाई? क्यों? इट इज अ पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग. यस, इट इज पैरासिम्पैथोलाइटिक. एंड बाकी तीनों जो है वो
माइमेटिक है, ठीक है। और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में कार्बियाकॉल एंड पिलोकार्पिन ये डायरेक्ट एक्टिंग है, तो निवोस्टिगमिन इनडायरेक्ट एक्टिंग है। कार्बियाकॉल स्टर में आएगा, ठीक है, पिलोकार्पिन अल्कोलाइड में आएगा, एंड निवोस्टिगमिन रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कोलिनस्टेरेज एंजाइम। क्या करता है कोलिनस्टेरेज एंजाइम? कोलिनस्टेरेज एंजाइम मेटाबोलाइज एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। ओके, यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो बताइए इसमें से ऑड क्या है? कैफीन, निकोटामाइड, एम्फेटामिन, डायजेपाम, ऑड क्या है बताइए? कैफीन। क्यों? व्हाई? कि बाकी सर सब ये ड्रग है, सेडेटिव शायद से। सेडेटिव्स है भाई। देखिए कैफीन जो है सीएनएस स्टिमुलेंट है, और बाकी जो है वो सीएनएस डिप्रेसेंट है। नहीं, कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट है, निकोटामाइड ये भी सीएनएस स्टिमुलेंट है, एम्फेटामाइन ये भी सीएनएस स्टिमुलेंट है। ये तीनों ड्रग सीएनएस स्टिमुलेंट है। डायजेपाम सीएनएस डिप्रेसेंट है एंड डायजेपाम इज हिप्नोटिक सेडेटिव, ठीक है। ये तीनों ड्रग्स जो है ये स्टिमुलेंट ड्रग है। सो द ऑड इज डायजेपाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल एज पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव? पोस्ट कोइटल या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सो इसमें से कौन सा जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव या पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है? तो इसमें से मेस्ट्रेनॉल ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है बट ये पोस्ट कोइटल नहीं है। मेस्ट्रेनॉल इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बट इट इज नॉट पोस्ट कोइटल। बाकी जो लिवोनॉर्जेस्ट्रल है, आईपिल, ठीक है, आईपिल आपको पता होगा, तो आईपिल दैट कंटेस्ट लिवोनॉर्जेस्ट्रल, सो ओलिप्रिस्टल, मिफेप्रिस्टोन, ये तीनों भी जो है ये पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है एंड मेस्ट्रेनॉल इज नॉट पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। इट इज कॉन्ट्रासेप्टिव but not post coital, तो मेस्ट्रेनॉल is not the post coital contraceptive, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following represent the major statin associated adverse effect? कौन सा statin associated adverse effect इसमें से? which one? मायोपैथी। correct, myopathy. so myopathy is muscle pain, मसल पेन। ठीक है, हाँ। and what are statin drugs? क्या है स्टैटिन ड्रग्स? यस, हाइपोलिपिडेमिक, एंटी हाइपरलिपिडेमिक या हाइपोलिपिडेमिक, अटोरोस्टैटिन, रोसुवास्टैटिन हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्टैटिन ड्रग्स जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक या हाइपोलिपिडेमिक है, अथेरोस्क्लेरोसिस के प्रिवेंशन में यूज होते हैं। देन हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि सार्टन, कल बताया था कि सार्टन ड्रग एआरबी होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। देन एसी इनहिबिटर, प्रिल ड्रग्स, PRIL, एनालाप्रिल, बेनाजेप्रिल, ठीक है, लिसिनोप्रिल, तो प्रिल ड्रग क्या होते हैं? एसी इनहिबिटर होते हैं। उसके बाद में पापी ड्रग्स, पापी मतलब कौन से ड्रग बताए थे बताइए? पापी, सो अल्फा 1 ब्लॉकर्स, अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, ठीक है। टैमसुलोसिन, सिन वाले, SIN सिन था ना सभी में, टैमसुलोसिन, ओके। तो सिन वाले ड्रग, पापी ड्रग जो कि अल्फा 1 ब्लॉकर्स है, ठीक है। तो स्टैटिन में मायोपैथी ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द ड्रग्स which produce the action similar to those seen by the stimulation of parasympathetic nervous system are referred to as, क्या कहेंगे? करेक्ट, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। देन 21,